Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 16. Today's topic is about multinational restructuring. Previously we have been talking about multinational capital budgeting. कुछ issues को हम इस chapter में भी cover करेंगे which are very much relevant to the capital budgeting with the multinational restructuring. So the objectives of this chapter are: number one, to introduce international acquisitions by MNC as a form of multinational restructuring. यानी जो इंटरनेशनल एक्विजिशंस कैसे की जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे उसको एज अ पार्ट ऑफ द मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा लेती हैं. नंबर टू इज टू एक्सप्लेन हाउ एमएनसीज कंडक्ट वैल्यूएशंस ऑफ फॉरेन टारगेट फर्म्स. वैल्यूएशंस करेंगी. वैल्यूएशंस का मतलब यह है कि आप किसी भी फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, द टुडेज वैल्यू, वेदर इट इज रियली फीजिबल टू एक्वायर दैट फर्म और नॉट. तो एक्विजिशन डिसीजंस जो हैं वो मल्टीनेशनल फर्म्स कैसे लेती हैं, विच इज द पार्ट ऑफ द मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग. मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि आपने अपनी मल्टीनेशनल का सेटअप इनहेंस कर दिया, चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया बेस्ड ऑन द नीड्स, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, perhaps to achieve certain corporate objectives of expansion and similar things. So एक छोटा सा पैरा मैं आपको यहाँ से रीड आउट करके दूं. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस commonly engage in multinational restructuring which involves restructuring the composition of their multinational assets or liabilities. यानी आपने अपने जो आपका मल्टीनेशनल सेटअप है, आपने उसमें अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को restructure करना है, right? Thus, multinational restructuring decisions not only determine the type of assets but also countries where those assets are located. पहला decision तो आप ये करेंगे कि what kind of assets are you going to keep in your structure, and दूसरा is but also the countries where those assets are located. Also, you are going to decide about the countries in which you want to make your investment. तो दो तरह की investments हैं. Number one is about your assets and number two is about your investments. Financial managers must understand how to assess restructuring alternatives so that they can make restructuring decisions that maximize the value of MNC. और basically आप इस restructuring को इसलिए करेंगे so as to maximize the firm's value. हम जितने भी काम करते हैं, हम जितने भी steps लेते हैं in the कॉर्पोरेशन की एडवांसमेंट के लिए, मल्टीनेशनल के सेटअप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, that always lead towards to increase the value of that particular firm. So this is also restructuring decision to maximize the value of the MNC, to maximize the value of the MNC. Okay. So another objective of this chapter is to explain why the valuations of a target firm may vary among MNCs. कि क्या valuations जो हैं of a target firm, why they vary among MNCs, and to identify other methods of multinational restructuring. And we are also going to identify the different methods of multinational restructuring. So what is multinational restructuring? Building a new subsidiary, acquiring a company, selling an existing subsidiary, downsizing operations, and shifting production among subsidiaries are all forms of multinational restructuring. Basically, we are talking about the different types of multinational restructuring. हमने ये बात की अभी तक कि जो multinational restructuring है, we can do it by different ways. Number one is either by building a new subsidiary, जो कि अभी तक हम पढ़ते आए throughout capital budgeting वाले पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको उसका हवाला दिया था. उसका भी थोड़ा लिंक बनता है कैपिटल बजटिंग का मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग के साथ, वो कैसे, वो भी हम देखेंगे. बिल्डिंग अ न्यू सब्सिडरी और एक्वायरिंग अ कंपनी और सेलिंग एन एग्जिस्टिंग सब्सिडरी, और एग्जिस्टिंग को आप सेल कर दें, ये भी एक रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है.
डाउनसाइजिंग कर दें ऑपरेशंस का, ये भी एक उसका पार्ट है। शिफ्ट कर दें प्रोडक्शन अमंग सब्सिडरीज, लोकेशंस को शिफ्ट कर दें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। दीज आर ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। और आप ये क्यों करते हैं? जाहिर है इन ऑर्डर टू enhance the value of your firm, in order to enhance the value of your firm। हमने अभी तक जितनी भी बात की throughout the text of finance and particularly the text of international financial management, multinational financial management, we are always focusing on the enhancing the value of the firm. So this is one way by which we can enhance the value of firm, और multinational restructuring can be done by different ways जो मैंने आपको explain किए। आगे आइए। MNCs continuously assess possible forms of multinational restructuring to capitalize on the changing economic, political and industrial conditions across the countries। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग क्यों की जाती है? उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। बिकॉज वी आर ऑलवेज, जो MNCs होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहती हैं कि जहाँ पे भी उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले वो अपनी फर्म की वैल्यू को इनहेंस कर लें, कोई ऐसा स्टेप ले लें। अब स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इट कैन बी द चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत वर्सन ऑफ होती जा रही है। जो पब्लिक सेक्टर, जो आपके कंपनीज हैं, जो आपकी पब्लिकली ओन्ड फर्म्स हैं, वो बहुत ज्यादा वीक होती जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो बहुत वेलकम किया जा रहा है। तो फर्म्स वुड लाइक टू हैव, फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू एक्वायर दोज इंस्टीट्यूशंस सो एज टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। वो अपने एक्सपेंशन के लिए उस चीज को यूज करेंगे। सिमिलरली द रीजंस में भी पॉलिटिकल, द वीक पॉलिटिकल सिनेरियो इन सर्टेन कंट्रीज में इनवाइट सर्टेन अदर MNCs टू कैपिटलाइज ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। एंड सिमिलरली द इंडस्ट्रियल कंडीशंस अगर अच्छी होती जा रही हैं तो देन देयर इज दैट इज एन अदर ओपनिंग गेट फॉर दोज फर्म्स who want to enter and who want to maximize their firm's value. So these are the different types of restructuring schemes and the different, you can say the catalyst that can change or that can improve the situation, which is the economic, political. These are the reasons why do we enter into such kind of multinational restructuring arrangements. Number one is the international acquisitions. An international acquisition enables a firm to immediately expand its international businesses since the target is already in place. The firm also benefit from the established customer relationship. अच्छा देखें स्टूडेंट, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करना बहुत अट्रैक्टिव है। वाई इज दिस सो? क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस की ऑलरेडी एक कस्टमर बेस बनी होती है। आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा एक चलता हुआ कारोबार बराए फरोख्त है। वाई इज दिस सो? कि उसकी वैल्यू ज्यादा है बिकॉज दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी, और उसकी एक कस्टमर बेस ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है, उसकी नेटवर्किंग हुई हुई है, उसके सप्लायर्स पता है कौन प्रोवाइड करेगा, उसकी मार्केट में एक जगह बनी हुई है। सो एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्वायर करना इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और उससे ये होता है क्योंकि टारगेट इज ऑलरेडी इन प्लेस, मैंने जैसे कि आपको बताया, एंड द फर्म में बेनिफिट ऑल्सो फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो अगर आप इमीडिएटली एक्सपैंड करना चाहते हो तो यू मे एंटर इनटू दिस फॉर्म ऑफ अ अरेंजमेंट विच इज द मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। एक स्टूडेंट्स, आपको छोटी सी मैं यहाँ से एग्जांपल पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, विच इज अबाउट द मैनेजिंग द वैल्यू एंड इट इज अबाउट द इंटरनेशनल एक्विजिशंस। An international acquisition of a firm is similar to other international projects in that it requires an initial outlay and is expected to generate cash flows whose present value will exceed the initial outlay. तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे आप कोई एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रहे हो। इंटरनेशनल एक्विजिशन बिल्कुल एक उसी तरह का अरेंजमेंट है जैसे आप कोई एक नया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करने जा रहे हो जिसकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो क्या होगी जो आपने उसको एक्वायर करते वक्त ली। उसको खरीदने के लिए जो आपने उसको परचेज करने के लिए जो आपकी वैल्यू है, दैट इज द इनिशियल कैश आउटले। और फिर उसके ऊपर जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लोज whose present value will exceed the initial outlay.
जो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो उससे ज्यादा होगी, जो उसके कमिंग जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो उससे ज्यादा होंगे. सो दिस इज बेसिकली द प्रोजेक्ट. Many international acquisitions are motivated. Many international acquisitions are motivated by the desire to increase global market share or to capitalize on the economies of scale through global consolidations. तो बहुत सारी जो international acquisitions हैं, they are basically motivated by the desire to increase global market share or to capitalize on the economies of scale through global consolidations. So either it is to capitalize on the economies of scales or it is to increase the global consolidations. Many US based MNCs including Rockwell International, Ford Motors, Scott Paper, Borden and Dow Chemicals have recently engaged in international acquisitions. बहुत सारी फर्म्स यूएस बेस्ड जिनके मैंने कुछ नाम आपको पढ़ के सुनाए, इंक्लूडिंग दी फोर्ड मोटर्स, बहुत पॉपुलर नाम है, आपने सुना होगा, डाउ केमिकल्स, दे हैव रिसेंटली एंगेज्ड इन द इंटरनेशनल एक्विजिशंस. MNCs may view international acquisitions as a better form of direct foreign investment DFI. एक्विजिशन जो है वो एक बहुत बेहतरीन तरीका है फॉर इनिशिएटिंग दी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री रादर देन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू सब्सिडरी. बजाय इसके कि आप कोई नई सब्सिडरी बनाएं, उससे बहुत अच्छा है कि आप इंटरनेशनल एक्विजिशन कर लें. उसकी रीजन ये है कि दी टारगेट इज ऑलरेडी इन प्लेस, जैसे कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, और बेनिफिट्स ये हैं कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर जो आपके हैं रिलेशनशिप्स, उनको भी आप इंजॉय कर सकते हो. MNCs may view international acquisition as a better form of direct foreign investment than establishing a new subsidiary. However, there are distinct differences between the two forms of DFI. लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक्विजिशन में और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में. वो क्या है? थ्रू एन इंटरनेशनल एक्विजिशन अ फर्म कैन इमीडिएटली एक्सपैंड इट्स इंटरनेशनल बिजनेस सिंस द टारगेट इज ऑलरेडी इन प्लेस. ठीक है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, सिंस द टारगेट इज ऑलरेडी इन प्लेस, आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो यू आर इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजिशन, इन अ मच बेटर पोजिशन, क्योंकि आपने कस्टमर बेस नहीं बनानी. एस्टेब्लिशिंग अ न्यू सब्सिडरी रिक्वायर्स टाइम. जब भी कोई नया बिजनेस है, अगर आपने नई सब्सिडरी बनाई है, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, आपने फोरकास्टिंग भी सारी कर लिया, बट स्टिल इट विल रिक्वायर सम टाइम टू एस्टेब्लिश योर सब्सिडरी. जैसे हमने स्टूडेंट्स कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में सब्सिडरी ओपन करने के लिए एक पूरा फोरकास्टिंग एनालिसिस और फिर उसके सारे हमने फ्यूचर कैश फ्लोज एनालाइज किए, एनपीवी कैलकुलेट की और फिर हमने बनाया. लेकिन एक्विजिशन के लिए आपको ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ आपको वैल्यूएशन जरूर करनी पड़ेंगी, जो मैं आज आपको बताऊंगी. Second, an international acquisition can benefit from the customer relationship that they have already established. These advantages of international acquisitions over the establishment of a foreign subsidiary must be weighed against the higher cost of acquisition. क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो acquisition की भी कुछ costs होंगी, क्या cost and benefit analysis में ऐसा तो नहीं है कि acquire करने के लिए आपको जो cost है वो ज्यादा इनकर हो रही है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट, देन यू विल फॉरगो दैट. आप देखेंगे कि आपने दोनों में से क्या चूज करना है. क्या आपके लिए नई सब्सिडी बनाना ज्यादा बेनिफिशियल है या ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू अगर आप अपनी जो एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है उसको एक्वायर कर लेते हैं. यानी नई सब्सिडी बनाना आपके लिए ज्यादा आसान है या एग्जिस्टिंग को एक्वायर करना आपके लिए ज्यादा आसान है. इन दोनों का आप आपस में कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लेंगे, जो आपको बेहतर लगेगा फिर कंपनी के पर्सपेक्टिव से, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के प्रोसेस से आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे. When viewed as a project, the international acquisitions usually generate quicker and larger cash flows than the establishment of a new subsidiary. अच्छा, अब एक्सपीरियंसेस ये कहते हैं कि जो कैश फ्लोज पैटर्न है, दे आर लाइक मोर ऑफ अ कंसिस्टेंट इन नेचर. अगर हम इंटरनेशनल एक्विजिशंस की बात करें एज कम्पेयर टू सर्टेन अदर अरेंजमेंट्स जिसमें हम होली ओन सब्सिडरी, नई सब्सिडरी जो है वो फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं और उसको फर्स्ट टाइम हम देखने जा रहे हैं. अगर हम उस तरीके से करें तो दैट इज परहैप्स मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड परहैप्स इवन मोर रिस्की, बिकॉज यू नेवर नो कि जो आपने नई सब्सिडी बनाई है उसका फ्यूचर क्या होगा. लेकिन जो इंटरनेशनल एक्विजिशंस हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है, सर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी का जो तो चांस इसमें भी है, बट यू नो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा सा पुराना है,
तो we can still rely on that. So but it also requires a larger initial outlay. लेकिन इसको acquire करने के लिए you need to have a larger investment. देखे ना, एक बने बनाए बिजनेस को एक्वायर करने के लिए you need to have a bigger investment as compared to अगर आप उसको open up करना चाह रहे हैं. International acquisitions also necessitate the integration of the parent's management style with that of the foreign target. अच्छा, जो आपका existing business है, ज़ाहिर है उसका एक culture भी establish हुआ है और उसका एक जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो ऑलरेडी इन प्लेस है. तो बहुत दफ़ा ये होगा कि वही वैल्यूज़ या वही इंटीग्रेशन उस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर एग्जिस्ट करती रहेगी सिंस रूट्स उसकी वहाँ पे थी, जो कि आपका प्रीवियस वाला बिजनेस था जिसको आपने एक्वायर किया. तो वो जो आपने चलता हुआ बिजनेस एक लिया है, रनिंग बिजनेस लिया, तो ज़ाहिर है उसकी जो कुछ वैल्यूज़ जो है वो इंटीग्रेशन उसकी वो उसी तरह से रहेगी मैनेजमेंट स्टाइल के हवाले से. However, establishing a new subsidiary usually costs less and there will not be a need to integrate the parent's management style with that of the target. तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पेरेंट के स्टाइल को कॉपी करें अगर हमारा अपना न्यू सब्सिडरी है, और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज अगेन यूजुअली लेसर. Trends in international acquisitions. The volume of foreign acquisitions by US firms has increased consistently since 1993. आपको थोड़ा सा US का हवाला दे रही हूँ. 1993 से यहाँ पे acquisitions का जो पैटर्न है that has increased consistently. In particular, European firms have been attractive target in view of the more uniform regulations across European Union member countries, the momentum for free enterprise in Eastern Europe and the inception of Euro. और जैसा कि हमने इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हवाले से बात की थी और हमने मॉनेटरी सिस्टम के हवाले से बात की थी, और हमने देखा था कि जो यूरो की इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से यूरोपियन फर्म्स की अमंग देमसेल्व्स जो अट्रैक्टिव टारगेट्स हैं इन द व्यू ऑफ मोर यूनिफॉर्म रेगुलेशंस बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द यूरो करेंसी एंड द यूरोपियन यूनियन. तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रेड का पैटर्न है, इंटरनेशनल एक्विजिशंस का पैटर्न है, वो खासा स्ट्रांग हुआ. तो European firms have been the attractive target in the view of more uniform regulations across European Union member countries and the momentum of the free enterprise in the Eastern Europe and the inception of Euro. क्योंकि इस यूरो जोन के बनने से ज़ाहिर है वहाँ पे regulations और करेंसी सब कुछ एक जैसा हो गया, तो it was far much easier to acquire one firm to another. एक फर्म के लिए दूसरी फर्म को एक्वायर करना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि बहुत सारे जो रिस्क्स हैं एक्सचेंज रेट वाले और जो उसके अंदर रेगुलेशंस के लिहाज से जो रिस्क थे वो बहुत हद तक अवॉइड हो सकते थे बिकॉज ऑफ हैविंग द यूनिफॉर्मिटी इन देयर रेगुलेशन पैटर्न्स. नाउ वी विल लुक एट द मॉडल फॉर वैल्यूइंग अ फॉरेन टारगेट. अगर आपके ज़हन में कोई फॉरेन टारगेट है जिसको आप एक्वायर करना चाहते हो, आप उसकी वैल्यूइंग करोगे, वैल्यूएशन करोगे, उसके लिए मॉडलिंग करेंगे. यू आर गोइंग टू यूज डिफरेंट मॉडल्स फॉर वैल्यूइंग अ फॉरेन टारगेट. लाइक एनी अदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कैपिटल budgeting analysis can be used to determine whether a firm should be acquired or not. हमने इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट समझ लिया. अगर हम किसी फर्म को एक्वायर करना चाहते हैं तो हमने उसको एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट समझ लिया. जब हमने उसको एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट समझ लिया तो हम उसका बिल्कुल उसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं जैसे कि हमने कैपिटल बजटिंग एनालिसिस किया था. जब मैं कैपिटल बजटिंग आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको साथ ये भी रेफरेंस दिया था दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक बिकॉज दिस टॉपिक इज सो वाइडली integrated in many different fields of finance and in many different decision criteria, especially when we are talking about the long term investments. Hence the acquisition decisions can be based on the comparison of the benefits and cost as measured by the net present value. So acquisition decisions जो हैं they can be based on the comparison of benefits and costs as measured by the net present value. This is the formula for the NPV. As you remember, initial cash outflow less plus cash flows in the time period T divided by 1 plus K, where T value varies from 1 to N, plus salvage value 1 plus K over N. K is the acquisition's required rate of return and N is the lifetime of the acquired firm.
हमने जब एनपीवी एनालिसिस किया था कैपिटल बजटिंग के हवाले से, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एन था दैट वाज द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट जो हम करना चाह रहे थे। यहाँ पे हम लाइफ टाइम ऑफ द एक्वायर्ड फर्म, यानी जो जिस फर्म को हम एक्वायर करना चाहते हैं हम उसी को एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। हम समझते हैं कि हम ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है उसको हम डिस्काउंट बैक कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कैपिटल बजटिंग एनालिसिस में किया था, और उससे हम लेस कर देंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो। दैट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो इन दिस वुड बी, इस केस में क्या होगा आप बता सकते हैं? इस केस में क्या होगा इनिशियल कैश आउटफ्लो? इस केस में इनिशियल कैश आउटफ्लो वो अमाउंट होगी जो हम स्टार्टअप में उसको एक्वायर करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए, उसको खरीदने के लिए जो हम पे करेंगे, दैट इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो या इनिशियल आउटले हम उसको कहते हैं। समझ आ गई? तो इनिशियल कैश आउटले ये जो आपका है, दिस इज द कॉस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे, कॉस्ट that you pay for acquiring the firm, acquisition के लिए, ठीक है ना। शुरू में जो आपने इसको एज अ बिग प्रोजेक्ट समझ लें और शुरू में आपने जो उसको खरीदने के लिए जो आपने अमाउंट पे करनी है उसको आप इनिशियल कैश आउटले कह दें। ये जो कैश फ्लोज हैं इन द पीरियड टी, लेट से आप रिज्यूम करते हैं ये जो आपका फॉरेन टारगेट है दैट विल वर्क फॉर 10 ईयर्स, ठीक है ना। यानी इसकी जो एन है the lifetime of the acquired firm that is equal to 10 years। अब इसके जो कैश फ्लोज हैं जो आप हर साल एक्सपेक्ट करेंगे फॉर दी अपकमिंग ईयर्स फॉर 10 ईयर्स, उसको आप डिस्काउंट बैक कर लेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेंगे, पीवीज निकाल लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने कैपिटल बजटिंग एनालिसिस की एग्जांपल में किया था। और आप साथ उसमें सॉल्वेज वैल्यू को ऐड कर लेंगे जो कि 10th ईयर पे जाके उस प्रोजेक्ट की बचेगी, जो यानी ये उस एक्वायरिंग फर्म की जो आप एक्वायर करने जा रहे हैं उसकी जो वैल्यू बच जाएगी एट द 10th ईयर, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेज वैल्यू। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज सिंपल। इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 द फर्म कैन बी एक्वायर्ड। सेम क्राइटेरिया, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव वी शुड गो फॉर दैट, एक्सेप्ट एक्वायर एज अ प्रोजेक्ट, यू मस्ट एक्सेप्ट एंड यू शुड एक्वायर। इफ एनपीवी इज नेगेटिव डोंट एक्वायर, ठीक है। और अगर 0 है तो फिर वी आर गोइंग टू डिसाइड अमंग वेरियस ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, और अगर हमें सूट करेगा तो हम ले लेंगे, अदरवाइज वी विल ड्रॉप इट। सो इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 देन द फर्म कैन बी एक्वायर्ड। नोट दैट द रेलेवेंट एक्सचेंज रेट टैक्सेस, द ब्लॉक्ड फंड रिस्ट्रिक्शन etc. should also be taken into account. I repeat, note that relevant exchange rate, taxes and blocked fund restrictions etc. should also be taken into account. इसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंज रेट रेलेवेंट एक्सचेंज रेट है, जाहिर है आप जिस फर्म को एक्वायर करने जा रहे हैं वो किसी और कंट्री में है, उसका जो एक्सचेंज रेट है, उसका जो करेंसी है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू योर्स। ये एक फैक्टर आपने ज़हन में रखना है। नंबर 2 इज टैक्सेस, टैक्सेस के क्या पैटर्न्स हैं वहाँ पे, एंड दी ब्लॉक्ड फंड रिस्ट्रिक्शन। ब्लॉक्ड फंड से मतलब ये है कि कई दफा अगर आपने उसको एक्वायर कर लिया तो हो सकता है कि होस्ट कंट्री आपको ये कहे कि कुछ अरसे के लिए जो उसके कैश फ्लोज हैं आपने उसको यहीं पे इन्वेस्ट करना है, जैसे कि हमने ब्लॉक फंड्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी इन दी कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में उस चैप्टर के अंदर। तो हो सकता है कि ये वाली सारी चीजें भी आपने जहन में रखनी है अगर ये एप्लीकेबल हैं। अगर आप तो यूरोजोन में काम कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, तो एक्सचेंज रेट तो आपका नहीं होगा। टैक्सेस भी मोर और लेस, रेगुलेशन पैटर्न्स भी सिमिलर है। ब्लॉक फंड्स को चेक कर लें एंड यू कैन गो ऑन। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड यू आर गोइंग इनटू अ कंपैरेटिवली न्यू सेटअप, तो देन यू मस्ट बी लुकिंग एट दैट। नाउ असेसिंग पोटेंशियल एक्विजिशंस आफ्टर द एशियन क्राइसिस। एशियन क्राइसिस के बाद पोटेंशियल एक्विजिशंस को आप कैसे असेस करेंगे? Although the Asian crisis had devastating effects, it created an opportunity for some MNCs to pursue new business in Asia. अच्छा स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसा होता है कि जो क्राइसिस होते हैं they always lead to certain opportunities, और बिजनेसमैन की ये बहुत बड़ी खूबी है या ये उसका बहुत बड़ा ये उसकी एबिलिटी है कि he is always seeking for the opportunities even in the crisis time period.
जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो 2007 का जो अर्थक्वेक आया था, हमारे 2005 का जो अर्थक्वेक आया था हमारे कंट्री के अंदर, बहुत जो स्वेयर अर्थक्वेक था, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज थी वो ये थी बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कि लोगों ने ऐसे प्लाजाज कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए जो कि अर्थक्वेक प्रूफ थे, यानी वो शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते थे फॉर अ सर्टेन रेक्टर स्केल, क्योंकि पीपल एट दैट टाइम दे वर रियली वेरी कॉन्शियस, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो उन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट्स करनी शुरू की, कुछ इस तरह के हाउसेस बनाए थे हमारे कुछ एरियाज के अंदर, जो रिमोट एरियाज जहाँ एबटाबाद और मुजफ्फराबाद की साइड पे जहाँ पे ज़लज़ला आया था, वहाँ पे उन्होंने ऐसे हाउसेस बनाए थे जो अर्थ को एक जो शॉक्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो ये बेसिकली बिजनेसमैन की एक अपॉर्चुनिटी को असेस करने की एक एबिलिटी होती है कि वो हमेशा क्राइसिस में भी जाके हमेशा कोई ना कोई वहां से अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। तो एशियन क्राइसिस भी जिसने बहुत ज्यादा एशियन कंट्रीज को हिट किया, जिसका हम बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, मैक्सिकन क्राइसिस, पैसो क्राइसिस, एशियन क्राइसिस, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट मेनी टाइम्स। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया, 2 में बताया, बहुत दफा मैंने आपको इसका हवाला दिया। इसकी वजह से भी पोटेंशियल एक्विजिशंस एशियन क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा सामने आई। In Asia, property values had declined, the currencies were weakened, many firms were near bankrupt, and the government wanted to resolve the crisis. Governments जो हैं वो रिजॉल्व करना चाहती थी क्राइसिस को, सिचुएशन बहुत वर्सन ऑफ थी, करेंसीज बहुत वीक हो गई, बहुत सारी फर्म्स बैंकरप्ट हो गई, और गवर्नमेंट चाहती थी कि वो किसी ना किसी तरह से इन क्राइसिस से निकलें। However, MNCs must also consider the लोअर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इन एशिया। लेकिन एमएनसीज को यह भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी जाहिर है एशिया में कम हो गया था, तो उनको ये पॉइंट भी ज़हन में रखना था कि ऐसा ना हो कि इस तरह की एक्विजिशन करने से उनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं अबाउट द ग्रोथ वो कहीं से हैम्पर ना हो जाए। इन यूरोप Many countries have adopted the euro as the local currency. उस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। This simplifies the analysis of for an MNC that is comparing possible target firms in the participating countries. So basically this simplifies the analysis of an MNC which is comparing the possible target firms in the participating countries. Okay, let me read out an example for you. In the first 6 months of 1998, US firms invested more than 8 billion in Asia. 1998 में एशिया ने 8 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया, more than double the amount they had spent there in all of 1997. Even अगर हम उसको 1997 से कंपेयर करें तो इट वाज डबल। इसका मतलब है 1997 में अगर उन्होंने 4 बिलियन इन्वेस्ट किया था तो 1998 में इट वेंट अप टू 8 बिलियन। एंड व्हाई इट वाज दैट? Procter and Gamble agreed to acquire Sanyong Paper, a large conglomerate in South Korea, during the crisis. Citicorp obtained a large stake of First City Bank in Thailand. So ये examples हैं basically which have been taken from the जो वर्ल्ड वाइड एक्विजिशन पैटर्न्स हुए थे उस जमाने में, उस वक्त में जब ये मेजर एक्विजिशंस हुई। Firms that made acquisitions had to consider the obvious adverse effect of the crisis in their capital budgeting analysis. The lower economic growth meant that most Asian projects would generate lower cash flows, and the weak currencies reduced the amount of cash flows that would ultimately be received as a return on the parent investment. लेकिन इसको जब उन्होंने ये एक्वायर किया, जैसे मैंने आपको 2 एक्विजिशंस का जिक्र किया, तो उनको इस बात का भी ख्याल रखना था कि क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हुई है, तो जो आपके कैश फ्लो पैटर्न्स हैं दे कैन बी लार्जली अफेक्टेड। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ द फॉरेन टारगेट specific factors, targets previous cash flows, these may serve as an initial base from which future cash flows can be estimated. जो previous cash flows जिस फर्म को आप एक्वायर करने जा रहे हो, जो उस फर्म के previous cash flows हैं, that can be the target or that can be the base for the future cash flows. यानी अगर आप किसी फर्म को आज एक्वायर करने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि
2010, 2011 में, 12 में, 9 में उसके कैश फ्लोज के क्या पैटर्न थे? अगर कीपिंग रेस्ट ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स कांस्टेंट, वी एक्सपेक्ट कि सिमिलर पैटर्न इज गोइंग टू बी फॉलोड इन फ्यूचर। तो ये टारगेट के स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, यू नीड टू स्टडी दैम एज वेल, आप उनको भी अच्छी तरह से स्टडी करें, बिकॉज जो मोस्टली ये होता है कि जो प्रीवियस पैटर्न होता है वही फ्यूचर के अंदर फॉलो हो रहा है। तो अगर जिस फर्म को आप एक्वायर करने जा रहे हैं, अगर उसका पैटर्न ये कहता है कि प्रीवियसली उनके जो कैश फ्लोज हैं दे आर ऑन द इंक्रीजिंग लाइन, they may serve as the initial base from which future cash flows can be estimated. Managerial talent of the target, आपने ये भी देखना है कि जिस फर्म को आप एक्वायर करने जा रहे हैं उसका मैनेजरियल टैलेंट कैसा है। The acquiring firm may allow the acquired firm to be managed as it was before the acquisition, downsize the firm or restructure its operation. जो एक्वायरिंग फर्म है वो ये भी इजाज़त दे सकती है एक्वायर्ड फर्म को कि वो अपने ही तरीके से, जिस तरह से वो पहले मैनेज कर रही थी अपने सारे ऑपरेशंस को, वो उसी तरह से उसको मैनेज कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि वो डाउन साइजिंग करे और रिस्ट्रक्चर करे उसके ऑपरेशंस को। सो दीज आर बेसिकली दी टारगेट्स स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए थे। नंबर 1 इज एक्विजिशन, नंबर 2 इज downsizing, and number 3 is restructuring. So if MNC acquires the target, it may allow target firm to manage as it was before the acquisition. A second alternative is to downsize the target firm acquiring it. For example, if the acquiring firm introduces new technology that reduces the need of some of the target's employee, it can attempt to downsize the target. जब आपने फर्म एक्वायर कर लिया तो ये भी हो सकता है कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए और आप चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इनका पैटर्न है जहाँ पे एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा हैं, हम उसमें से वहाँ से कुछ डाउन साइज करके, कुछ कट ऑफ करके यहाँ पे अपनी कुछ कॉस्ट को बचा लें। सो द इफेक्ट्स ऑफ कैश फ्लोज कैन वेरी विद दिस सिचुएशन, कैश फ्लोज डिफरेंट हो सकते हैं। इन एडिशन, an MNC may encounter significant barriers to increasing efficiency by downsizing in several countries. Government of some countries are likely to intervene and prevent the acquisition if downsizing is anticipated. अब कई दफा ये होता है कि गवर्नमेंट्स भी इंटरवीन करती हैं कि ऐसा ना हो कि फर्म को एक्वायर करने के बाद ये डाउन साइजिंग करें, और अगर ये डाउन साइजिंग करेंगे तो उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। लाइक बहुत सारे लोग अगर वो टेक्नोलॉजी की वजह से डाउन साइजिंग करते हैं या किसी भी वजह से, तो जो लोग जिनको वो जॉब से फारिग करेंगे तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयड लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट्स भी कई दफा उसमें इंटरवीन करके ये देखती हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होने वाला कि इससे सूरत हाल और ज्यादा खराब हो जाए। देन इज द कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। एक आपके हो गए टारगेट स्पेसिफिक फैक्टर्स, नाउ वी आर लुकिंग एट द कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर। कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स से मतलब ये है कि टारगेट्स लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, डिमांड इज लाइकली टू बी हायर व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशंस आर हायर। टारगेट्स लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे वो टारगेट फर्म मौजूद है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। डिमांड इज लाइकली टू बी हायर व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशंस आर हायर। जब इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी तो डिमांड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई। So the potential targets in countries where economic conditions are strong are more likely to experience strong demand for their product in the future and may generate higher cash flows. और अगर आप किसी तरह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को पहले से प्रिडिक्ट कर लें तो नथिंग लाइक दैट। और आपको कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स के लिए ये बहुत जरूरी है दैट you must assess the country's economic condition beforehand. ठीक है। So also some acquisitions of the firm are intended to focus on exporting from the target's home country, so the economic condition in the target country may not be as important. अगर आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो that is not very important, लेकिन अगर आप एक्वायर करने जा रहे हैं और वहीं पे जाके आपने ऑपरेशंस करने हैं और उसी की जो लोकल कम्युनिटी है उसके साथ डील करना है, तो then it is very very important to know about their economic conditions and their experiences. So the economic conditions are difficult to predict over a लॉन्ग टाइम पीरियड, स्पेशली फॉर द इमर्जिंग कंट्रीज। और इकोनॉमिक कंडीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए फोरकास्ट करना भी बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इमर्जिंग कंट्रीज, क्योंकि इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर जो पैटर्न है ग्रोथ का दैट इज गोइंग टू बी चेंज्ड। वो चेंज भी होता रहता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही हैं।
तो वी कैन नॉट रियली प्रिडिक्ट, कभी ऊपर कभी नीचे फ्लक्चुएशंस भी हो सकती हैं, एंड दे माइट सी द वेरिएशंस एंड द वोलेटिलिटी इन देयर इकोनॉमिक पैटर्न्स. टारगेट्स लोकल पॉलिटिकल कंडीशंस. Cash flow shocks are less likely when the political conditions are favorable. Again, political instability might lead to the instability for the cash flow patterns of the acquiring firm. तो हम जो acquiring firm है, जो target firm है, उसको लेने जा रहे हैं, तो हमने ये भी देखना है कि उस कंट्री की political condition कैसी है, और क्योंकि political condition का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है. So the potential targets in the countries where political conditions are favorable are less likely to experience adverse shocks to their cash flows. The sensitivity of cash flows to political condition is dependent on the firm's type of business. Political conditions are also difficult to predict over a long time period, especially when we are talking about the emerging countries. Political conditions जो हैं, they keep on changing, and especially when we are talking about the emerging countries. आगे चलें. Then is targets industry conditions. Targets industry conditions is industry with high growth potential and non-excessive competitions are preferred. Some industries in a particular country may be extremely competitive while others are not. कुछ countries के अंदर कुछ industries बहुत strong होती हैं और बहुत competitive होती हैं. In addition, some industries exhibit strong potential for growth in a particular country while other exhibit very little potential. कुछ countries के अंदर कुछ industries का भी बहुत bright prospect होता है because of the maybe the consumer demand, because of maybe the specific climatic conditions etc. उसकी वजह से वो इंडस्ट्री हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम करे बिकॉज ऑफ सर्टेन कल्चरल वेरिएशंस, डिफरेंट हैबिट्स की वजह से भी डिफरेंट हो सकता है. जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स आइटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं, इसलिए उस तरह की जगह के ऊपर शायद इस तरह की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करे. कुछ जगहों पे हमने देखा है जैसे राइडिंग वगैरह बहुत कॉमन है डेवलप वर्ल्ड के अंदर, लोग बहुत शौक से करते हैं. अब उनके लिए जो स्पेसिफिक जो उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्री है विच इज रिलेटेड विद द लेदर प्रोड्यूस्ड गुड्स, वो उसके हवाले से ज़्यादा स्ट्रांग होगी डिपेंडिंग ऑन द चॉइस एंड द कंज्यूमर डिमांड्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. When an MNC assess targets among countries, it would prefer a country where the potential growth for its industry is higher and competition with the industry is not very excessive. क्योंकि बहुत ज़्यादा competitive market में भी अगर आप enter होने जा रहे हो तो that is not going to be very very attractive for you, क्योंकि already competition बहुत है. तो अगर आप चले भी जाएंगे वहाँ पे तो आपके जो profit margins हैं वो बहुत low रहेंगे. So you have to see the targets industry conditions as well. Then is the target's currency condition. आपने ये भी देखना है कि उसकी currency condition कैसी है. A currency that is expected to strengthen over time will usually improve the target's remitted earnings to parents. ये सिनेरियो हमने ये प्रोसीजर उस वक्त देखा था जब हम अगर आपको याद हो हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे और वहाँ पे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी और वहाँ पे हमने उसका एक स्ट्रॉन्ग सिनेरियो देखा था सिंगापुर डॉलर का करेंसी का विद डॉलर, और हमने ये देखा था कि जब वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा था तो हमारे जो कैश फ्लोज का पैटर्न था दैट वाज रियली रियली वेरी इनकरेजिंग फॉर द पेरेंट. जो पेरेंट को हमने अर्निंग्स रेमिट करनी थी वो भी खासी प्लस में आ रही थी. प्लस और जो उसका एक बेनिफिट था वो ये था कि जो क्यूमुलेटिव एनपीवी थी वो बहुत अच्छी पॉजिटिव में आ रही थी जबकि स्ट्रॉन्ग सिनेरियो था. तो करेंसी विच इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन ओवर टाइम विल यूजुअली इंप्रूव द टारगेट्स रेमिटेड अर्निंग्स टू द पेरेंट्स. If a US-based MNC plans to acquire a foreign target, it must consider how future exchange rate movement may affect the target's local currency cash flow. It must also consider how exchange rates will affect the conversion of the target's remitted earnings to the US parent. अगर कोई US-based firm है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसकी करेंसी का क्या रिलेशनशिप है with that of the target firm home currency. ठीक है ना. In the typical case, ideally the firm currency could be weak at the time of acquisition. जिस वक्त weak हो that is the best time to acquire it, so that MNC's initial outlay is low, ताकि MNC को कम पैसे दे के
वो एक्वायर करना पड़े, बट स्ट्रेंथन ओवर टाइम, क्योंकि जब उसने एक दफा एक्वायर कर लिया अब तो उसकी इन्वेस्टमेंट चलेगी ना उधर, और अब आप इंटरेस्टेड हो कैश फ्लोज में, अगर उस कंट्री की करेंसी बेहतर होगी, उसकी करेंसी अप्रिशिएट होगी, तो आपके लिए वो फायदा है, क्योंकि आपको जो रेमिट बैक हो रहा है कैश फ्लो वो उनकी करेंसी में हो रहा है, जिसको आप बाद में कन्वर्ट करोगे, समझ आ रहा है ना। तो अगर उनकी करेंसी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो जब आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ दैट। सो there can be exceptions to this general statement, but the point is that MNCs forecast future exchange rates and then apply those forecasts to determine the impact of these cash flows. आगे चलते हैं। Targets local stock market conditions. When the local stock market prices are generally low, the target's acceptable bid price is also likely to be low. जब उनकी लोकल स्टॉक मार्केट की प्राइसेस कम होंगी तो टारगेट की जो एक्सेप्टेबल बिड प्राइस है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी लो। Taxes applicable to the target. What matters to the acquiring firm is the after-tax cash flows that it will ultimately receive in the form of remitted funds. Now the example of the valuation process. Lincoln Company desires to expand in Latin America or Canada. International screening process, it first identifies prospective targets and then conducts an initial screening to pick out those that deserve a closer assessment. पहले आप एक broader assessment करेंगे जिसमें आप पिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने एक closer assessment करनी है after the screening process, initial screening process, whereby you are going to look at the closer assessment which really need more assessment. आप closer look लेना चाहते हैं, पहले एक बड़ा फिल्टर लगाएंगे फिर छोटा फिल्टर लगाएंगे, इन अदर वर्ड्स, यानी छोटे फिल्टर से मतलब है कि और बारीकी से आप देखेंगे कि अब इन 2-3, पहले आपके पास 4-5 ऑप्शंस थी, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर से निकाल के 2-3 अपने पास रख ली ऑप्शंस, और फिर आप उसको फिर क्लोजली असेस करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस यूज टू screen foreign targets. Target based in Mexico, Brazil, Colombia and Canada. These are given to you. Is the target receptive to an acquisition? Mexico, no. Why? Local economic and industrial conditions favorable. Local political conditions okay. Local currency conditions okay. Prevailing stock market prices okay. Tax laws may change. Brazil में आ जाएं. Is the target receptive to acquisition? Maybe. Local conditions okay, political conditions okay, currency conditions okay, stock prices too high and tax laws may change. Colombia, are they receptive? Yes. Local conditions favorable, local political conditions volatile, currency conditions favorable, prevailing stock market prices okay and tax laws reasonable. Canada, receptive? Yes. Local conditions okay, political conditions favorable, currency conditions slightly unfavorable, prevailing stock market prices okay and tax laws reasonable. Basically these are the 4 targets which are based in these 4 different countries, और हमने उनकी assessment की based on different conditions जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी हैं, हमने उसको okay और yes करके हमने उसको किसी तरह से quantify किया होगा, और फिर हमने उसका जवाब yes, no में और maybe और favorable में हमने जवाब दे दिया। Based on this screening process, Lincoln decides that only target worth further consideration is the target in Canada. Why? क्योंकि देखें नंबर 1 कॉलम में आप देखें, is the target receptive to an acquisition? Canada सपोर्ट कर रहा है, हालांकि कोलंबिया भी सपोर्ट कर रहा है, पहले तो 2 आप निकाल दें क्योंकि they are not receptive to an acquisition. मैक्सिको और ब्राजील, मैक्सिको बिल्कुल नहीं and about Brazil maybe, तो you will not be in doubts, मतलब ये तो दोनों आप निकाल दें। जो कोलंबिया और कनाडा, इन दोनों को आप देखें, लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस कोलंबिया में फेवरेबल हैं, कनाडा में ओके हैं, लेकिन पॉलिटिकल कंडीशन इज क्वाइट वोलेटाइल इन कोलंबिया वेयर एज इट इज फेवरेबल। लोकल करेंसी कंडीशंस इन कोलंबिया इज फेवरेबल वेयर एज कनाडा में स्लाइटली अनफेवरेबल है, लेकिन मे बी वी आर होपिंग कि दैट इज गोइंग टू इम्प्रूव फर्दर। फिर प्रिवेलिंग स्टॉक मार्केट प्राइसेस दोनों में ओके थी और दोनों में ही टैक्स लॉस रीजनेबल थे, तो हमने जो केयरफुल एनालिसिस किया उसकी बेसिस पे हमने ये कहा कि पॉलिटिकल कंडीशंस जो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है दैट वाज अबाउट द पॉलिटिकल कंडीशन, तो हमने इन दोनों में से चूज कर लिया
कनाडा को, इनफैक्ट इन चारों में से चूज कर लिया कनाडा को बेस्ड ऑन आवर केयरफुल स्क्रीनिंग प्रोसेस. Estimating the target's value. Once Lincoln has completed its initial screening, it conducts a valuation of all the targets that pass the screening process. Only those targets that are priced lower than their estimated present values should be acquired. अब हमने उसके ऊपर वैल्यूएशन मॉडल भी लगाना है, यानी हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि फ्यूचर में अगर हमें ये कैश फ्लोज दे और उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, तो वैल्यूएशन के थ्रू हम देखेंगे कि अगर तो एनपीवी हमारी पॉजिटिव आती है तो हम सिर्फ उन्हीं टारगेट्स को देखेंगे, बाकियों को हम हरगिज नहीं देखेंगे बिकॉज दे आर नॉट वर्थ फाइल. यहां देखें रेवेन्यूज लास्ट ईयर कैनेडियन डॉलर 90, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, और आपको ये पैटर्न्स गिवन है. अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 10.5 लास्ट ईयर, ईयर 1 में 24.5, ईयर 2 में 21.7 अर्निंग आफ्टर टैक्सेस एंड ईयर 3 में 33.32. आप देखें कि अच्छा खासा हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न आ रहा है इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स. इसके जो पैटर्न्स हैं, आपने उसकी क्यूमुलेटिव एनपीवी कैलकुलेट किया लास्ट में देखिएगा, दैट इज इक्वल टू 19.67 फर्स्ट ईयर की, ईयर 2 की दिस इज 34.50 क्यूमुलेटिव पीवी, और ईयर 3 में 158.72. हम इंटरेस्टेड थे इस बात में कि हमारी जो क्यूमुलेटिव पीवी है वो माइनस में प्लस में होगी, तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं, हम वैल्यू ऑफ द फर्म को बेसिकली वैल्यूएशन मॉडल में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. तो ये हमें ऐसा लग रहा है देखने से कि ये हमारी इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे लिए एक हैप्पी सिचुएशन है. सपोज दैट द टारगेट शेयर्स आर करंटली वर्थ 170 Canadian dollar and $136 million, and Lincoln is willing to pay a 10% premium, 10% पे करना चाहता है to persuade the target's board of director to approve the acquisition. अब ये acquisition process शुरू हो रहा है. The target may reject the offer and ask for a higher premium. पहले स्टेप पे ये हो सकता है जो टारगेट है वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे और वही कहे कि हम इतना हाई प्रीमियम नहीं पे करना चाहते, और वो हम इतने कम प्रीमियम पे नहीं देंगे बल्कि हम ज्यादा प्रीमियम, एंड दे आर गोइंग टू आस्क फॉर द हाई प्रीमियम. हाउएवर लिंकन विल नॉट पे मोर देन इट्स एस्टिमेट ऑफ द टारगेट्स पीवी, दैट इज CS इज इक्वल टू 199 और 159 मिलियन. ये देखें ये 158.72 है. अगर आप लास्ट वाली स्लाइड पे देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना. अब देखें वो इससे ज्यादा पे नहीं करेगा. However, the Lincoln will not pay more than its estimate of the target PV. जो टारगेट की पीवी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू $159 मिलियन, वो उससे ज्यादा पे नहीं करेगा. If Lincoln company decides not to bid for the target at this time, it will have to redo its analysis if it later considers acquiring the target. अगर वो इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करेगा, बाद में ये बिड करना चाहेगा, तो फिर उसको ये प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा. Why? Because the patterns they keep on changing. एक्सचेंज रेट भी चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल कंडीशंस और सब कुछ जो हमने इनिशियल स्क्रीनिंग का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, अगर हम इस वक्त ये प्रोसेस नहीं करते तो जब हम नेक्स्ट टाइम दोबारा करेंगे तो फिर दोबारा हमें वो सारे टेस्ट करने पड़ेंगे. ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है, थोड़ा सा हट के बात करते हैं लेक्चर से. ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो तो ऑपरेशन करने से पहले उसके सारे टेस्ट लिए जाते हैं. उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, उसका शुगर लेवल, उसके जितने भी रिलेटेड ब्लड के टेस्ट हैं वो सब लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज एक्सेट्रा, वट एवर इज रिक्वायर्ड. अगर ऑपरेशन किसी वजह से पोस्टपोन हो गया और कहा कि अब 3 महीने बाद ऑपरेशन होगा, जब वो 3 महीने बाद दोबारा ऑपरेशन के लिए आएगा, दोबारा वही सारे टेस्ट रिपीट होंगे. हालांकि 3 महीने में हो सकता है कि ज्यादा चेंज ना आई हो, बट स्टिल डॉक्टर्स वुड लाइक टू सी कि ऐसा तो नहीं हुआ कि सिचुएशन चेंज हो गई है. बिल्कुल ऐसे ही आप बेसिकली ऑपरेशन ही करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यू वांट टू सी कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ. आप दोबारा अगर आप सारे वैल्यूएशन प्रोसेस में एंटर होंगे तो दोबारा आपको सारी इनिशियल स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी. व्हाई इज इट सो? बिकॉज यू वांट टू सी कि चेंज तो नहीं आ गया कोई. अगर कोई चेंज आ गया तो देन यू माइट नीड टू रीडू इट. ठीक है ना. The value of the target will change as the expected cash flows and the required rate of return change. Value of the target will change as the expected cash flows
भी चेंज हो सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज हो सकता है फॉर दैट टाइम पीरियड. इन एडिशन स्टॉक मार्केट एंड एक्सचेंज रेट कंडीशंस विल चेंज टू. बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्लड का सीपी लेवल, एचबी लेवल और डिफरेंट वाइट सेल्स वगैरह चेंज हो सकते हैं ओवर टाइम, बिल्कुल ऐसे ही स्टॉक मार्केट कंडीशन चेंज हो सकती है, एक्सचेंज रेट कंडीशंस चेंज हो सकती हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड. This is the influence of the Czech stock market and the currency conditions on the cost of acquiring a Czech target. ये आपको 2 सालों का डाटा गिवन है और आप देख लें कि चेंज इन दी करोना वैल्यू एंड चेंज इन दी स्टॉक मार्केट लेवल परसेंटेज वाइज आपको पैटर्न नजर आ रहा है विच इज क्वाइट वोलाटाइल एंड फ्लक्चुएटिंग. ठीक है ना. सो चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग टारगेट दैट इज गोइंग टू बी चेंज ऑटोमेटिकली. Why valuation of a target may vary among MNCs? Estimated cash flows of a foreign target. Different MNCs will manage the target's operation differently. Number one is estimated cash flows of the foreign target. Different MNCs जो हैं, they are going to manage the target's operation differently. Each MNC may have a different plan for the fitting the target within the structure of MNC. हर MNC का तरीकाकार डिफरेंट है, हर MNC का मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट है, इसलिए वैल्यूएशंस ऑफ अ टारगेट मे वेरी अमंग MNCs. Acquirers based in certain countries may be subjected to less taxes on remitted earnings. तो acquirers who are based in certain countries, they may be subjected to less taxes on the remitted earnings. टैक्स रेट्स का डिफरेंट है. एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स ऑन रेमिटेड फंड्स, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है. डिफरेंट एमएनसीज हैव डिफरेंट स्केड्यूल फॉर रेमिटेड फंड्स. जो फंड्स की रेमिटेंस है उसके भी जो पैटर्न्स हैं दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट. सो बेसिकली दीज आर द रीजंस. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द एक्वायरर. Different MNCs may have different plans for the target such that the perceived risk of the target will be different. जो risk level है वो भी different है of the different targets. That is why different MNCs have different plans for the target. The local risk-free interest rate may differ for MNCs based in different countries. जो RF है वो भी different हो सकता है. Risk-free rate is usually on the government securities. दैट इज द मिनिमम रेट बट गारंटीड और सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए किया जाता है. जैसे कि हमारे जो ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं उसके जो टी बिल्स हैं उसके ऊपर जो हमें रेट मिलता है दैट इज कॉल्ड द रिस्क फ्री रेट. अदर टाइप्स ऑफ मल्टीनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग. इंटरनेशनल पार्शियल एक्विजिशंस नंबर 1. अच्छा, इसमें क्या होता है? इन मेनी केसेस एन एमएनसी मे कंसिडर अ पार्शियल इंटरनेशनल एक्विजिशन ऑफ अ फर्म in which it purchases part of the existing stock of a foreign firm. A partial international acquisition requires less funds because only a portion of the foreign's target share are purchased. With this type of investment, the foreign target normally continues operating and may not experience the employee turnover that commonly occurs after the target's ownership changes. Nevertheless, by acquiring a substantial fraction of the shares, the MNC may have some influence on the target's management and be in a position to complete the acquisition in the future. Some MNCs buy substantial stakes in foreign companies to have some control over their operations. मतलब उसको आप partially acquire कर लें, उसमें कुछ shares purchase कर लें. For example, Coca-Cola has purchased stake in many foreign bottling companies that bottle its syrups. In this way it can ensure the bottling operation meets its standard. ठीक है ना. उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ये किया. They have stakes in many foreign bottling companies जो कि उनके सिरप को बॉटल करते हैं. In this way उन्होंने इंश्योर किया है कि बॉटलिंग ऑपरेशंस जो है वो they meet some of its standards. An MNC may purchase a substantial portion of the existing stock of a foreign firm so as to gain some control over the target's management operations. जैसे कि मैंने आपको कोका कोला की कंपनी दी की एग्जांपल दी. The valuation of the firm depends on whether the MNC plans to acquire enough shares to control the firm and hence influence its cash flows. International acquisition of privatized business. Many MNCs have acquired businesses from foreign governments.
These businesses are usually difficult to value because the transition entails many uncertainties, cash flows, benchmark data, economic and political conditions, exchange rate, financing cost, etc. Then comes international alliances. Sometimes MNCs engage in alliances such as joint venture, licensing arrangement with foreign firms. ये भी एक तरीका है. The initial outlay is typically smaller, just to enter into the franchise agreement या licensing agreement, but the cash flows to be received will typically be smaller too. लेकिन उससे जो cash flows मिल रहे हैं वो भी बहुत कम होंगे. जाहिर है सिर्फ आपको royalty fee मिलेगी for a certain time period, which is comparatively very very low as compared to अगर आप उसको wholly owned subsidiary या acquisitions में जाते हैं. International divestitures. An MSC should periodically reassess its DFIs to determine whether to retain them or to sell them. Divestiture का मतलब होता है to sell it out. अगर आप ये देखें कि ये ऑपरेशन इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा या अब इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिटेनिंग दैट, तो यू मे डाइवेस्ट दैट. आप उसको डाइवेस्ट भी कर सकते हैं. The MNCs can compare the present values of the cash flow from the project if it is continued to the proceeds that would be received after taxes if it is divested. This is the divestiture analysis. आप देख लें कि cash received from the divestiture क्या है और PV of the foregone cash flows क्या है at a discount rate, और अगर आपकी NPV माइनस में है तो then you can do that. Then restructuring decisions as real options. Restructuring decisions may involve real options or implicit options on real assets. If a proposed project carries an option to pursue an additional venture, then the project has a call option on the real assets. You have studied the call option to buy and put option is to sell. If the proposed project carries an option to divest part or all of itself, the project has the put option on the real assets. अब आपके पास एक ये भी चॉइस है कि with the help of real options, call options and put options, you can have this facility कि आप उसको किसी वक्त भी divest करना चाहें या उसको purchase करना चाहें तो you can do that. This is the formula. The expected NPV of a project with real options may be estimated as the sum of the products of the probabilities of each scenario and the respective NPV for that scenario. So dear students, this was all about the slides. एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल पढ़ के यहाँ से सुनाना चाहती हूँ. मैनेजिंग फॉर वैल्यूज, छोटा सा केस. Mazda's decision to restructure. Mazda's main production facilities are based in Japan, but it relies heavily on exports to US and Europe. In 1996, Ford Motors Company purchased about 1/3 of the Mazda's share. जो हमने international partial acquisitions वाली बात पढ़ी. In the late 1990s, Mazda's performance was weak despite Ford's effort to improve its operations. It had an excessive amount of debt. It also highly susceptible to the weakness of the euro in 1999 to 2000 period. When the euro weakened against the yen, the European demand for exports made in Japan was reduced. Mazda's cost of producing its vehicle in Japan were not reduced, however, because these costs are denominated in yen. क्योंकि उनकी जो cost थी जापान में प्रोड्यूस कर रहे थे तो वो yen में थी. In the first 6 months of the 2000, Mazda's experienced losses of more than 9 billion yen. उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ and much of the loss was attributed to the euro's weakness, जो कि हमने expect की थी 1999 से 2000 के दरमियान. In November 2000, Mazda decided to engage in major multinational restructuring to resolve its financial problems. जो previously euro currency की जब वो weaken हुआ तो उससे जो problems इनको आए, उन्होंने ये सोचा कि हम इसकी restructuring कर लें. It shifted some of its production from Japan to Europe, क्योंकि Japanese yen के against euro currency weak हो रही थी, so that its expenses and revenues from its sale in Europe would be denominated in the same currency, ताकि उनके revenues भी और उनके expenses भी एक ही currency में हो. This strategy reduced Mazda's exposure to the exchange rate risk because it could sell the cars in Europe at a markup above the cost necessary to produce them. The euro's movement against other currencies would not have a direct effect on the Europeans' demand for Mazdas. This multinational restructuring was politically tense
because it required the closing of some facilities in Japan, which resulted in layoffs. Since the restructuring, however, the value of firm has increased and the shareholders have benefit from Mazda's decision. तो इस तरह से Mazda को benefit हुआ for doing such kind of restructuring decision. आपने देखा कि कैसे उन्होंने अपने फैसिलिटी को शिफ्ट किया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो एज टू कीप द एडवांटेज और अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एनहांस करने के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप यू हैव रियली एंजॉयड. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर योर पेशेंस. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज.